تو میں اب آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا ان کی شائن شان استقبال کریں. آپ سب کی سماعتوں کے لیے میں محترم وحید عالم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک. انتہائی عزتوں کے لائق پرنسپل ادارہ حاضہ تاج ضیاء صاحب، سینئر صدر معلم جناب سلیم اکبر صاحب، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور ہائی اسکول بیترا کے صدر معلم عابد حسین صاحب، معززین علاقہ، اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، آپ سب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ آج آپ نے اتنی پر رونق اور اتنی اچھی محفل میں مجھے مدعو کیا. میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جو ایک بات سامنے رکھی گئی ہے اسے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ اس کے بعد کی جو میری گفتگو ہے وہ آپ ذرا غور سے سنیں. جو آپ کا کیمسٹری کا پرابلم ہے اس میں نے پہلے دن سے ہی میرا موقف یہ تھا کہ ہائر سیکنڈری اسکول گورا وہ ادارہ ہے کہ جب بھی حکام بالا نے ضلع سدنوتی میں کسی ادارہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے ہائر سیکنڈری اسکول گورا کا تذکرہ کیا. مجھ سے پوچھا گیا کہ ضلع سدنوتی کے 2 بہترین اداروں کا نام بتائیں جن کو ہم ماڈل ادارے بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے استفسار کیا کہ ماڈل ادارہ آپ کیسے بنانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر ایک ایسا صدر معلم یا پرنسپل تعینات کریں گے جو کسی سیاسی اثر و رسوخ سے پاک ہوگا، وہ اپنی مرضی کا سٹاف وہاں پر رکھے گا. تمام ماڈل اداروں کی جو جملہ خصوصیات ہیں اس ادارے کے اندر ہوں گی. تو میرے ذہن میں جو پہلا ادارہ آیا وہ یہی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گورا کا تھا اور یہی نام میں نے اوپر بھیجا جس کے اوپر ورکنگ جاری ہے اور بہت جلد انشاءاللہ ایک ماڈل ادارے کے طور پر یہ ادارہ سامنے آپ کے آئے گا. مجھ سے پوچھا گیا کہ 24 اکتوبر یوم تاسیس کا موقع ہے، ہم کچھ پرنسپل صدر معلمین صاحبان کو گولڈ میڈل دینا چاہتے ہیں، کچھ انعامات دینا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے ذہن میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول گورا کا ادارہ آیا اور میں نے جو 3 نام بھیجے سب سے اوپر اس ادارے کے پرنسپل کا نام بھیجا. اس لیے نہیں بھیجا کہ ان کا نام تاج ضیاء تھا یا تاج ضیاء ہے، بلکہ اس لیے بھیجا کیونکہ اس ادارے نے نہ صرف اس گورا کی دھرتی کا سر فخر سے بلند کیا بلکہ پورے ضلع سدنوتی کا سر فخر سے بلند کیا. ہم جب اعلیٰ سطحی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ کیڈٹ کالج کے لیول کا ادارہ ہے، ہمارا ادارہ نوبل کالج کو کمپیٹ کر رہا ہے اور پرائیویٹ ادارے بے شک دل و جان سے محنت کر رہے ہیں، لیکن ہم انتہائی قسم پرسی کی حالت میں، ایسی حالت میں جب ہمارے اداروں میں 4-4 5-5 ٹیچر کی شارٹیج ہے پھر بھی ہم ان اداروں کا صحیح دل و جان سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر جب بھی ہم نام لیتے ہیں تو جو جن چند اداروں کا نام لیتے ہیں اس میں سر فہرست یہی گورا کا آپ کا مادر علمی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ پروپیگنڈا کیا گیا میرا خیال ہے یہ لفظ اتنا مناسب نہیں ہے. جس پر سر نے تو کہا کہ بڑے ہمارے اعجاز صاحب جو ہے وہ نرم ہوئے لیکن مجھے تو بڑے سخت لگے، بڑی سخت باتیں انہوں نے کہی ہیں. لیکن چلے ان کی باتوں سے مجھے جہاں ایک پرنسپل ادارہ کی ایک خو نظر آئی وہیں ایک بات کی طلب بھی تھی، اس لیے ہم اس بات کو فیل کرتے ہیں. اور یہ جو ایک آپ کا مسئلہ ہے کیمسٹری کا، انشاءاللہ ہم اس کو انتہائی ایک ہم لفظ یہاں آ کر میں نے سیکھا باوجود ممکنہ.
जितनी जल्दी हो सका हम ये मामला हल करेंगे और उम्मीद है अगले 1-2 दिनों में ये मामला हल हो जाएगा। दरअसल प्रॉब्लम उसमें यह है कि जो शख्स आप डिमांड कर रहे हैं वो एक ऐसे अदारे में है जहां पे तादाद है 200, वो पैकेज का स्कूल है और वहां पर उसातिज़ा है 11। अब 11 में से मैं एक टीचर उठा के आपको दे दूं, आपके टीचर है 32, डेप्यूटेशन पे कितने हैं वो कारी लतीफ साहब को पता होगा, कम्युनिटी के कितने हैं वो भी आप जानते हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप किसी टीचर को कहीं से उठाते हैं तो वहां पर मुतबादल देना पड़ता है। जो मुतबादल की स्कीम आप दे रहे थे उसमें 7-8 इदारे आ रहे हैं, तो वो फिर 7वां-8वां को रजामंद करना बड़ा एक कठिन मरला था, लेकिन वो हमने अबूर कर लिया। इंशाल्लाह जल्दी आपको ये टीचर हम प्रोवाइड कर देंगे। मेरा ख्याल है कि आप इसके बाद की जो गुफ्तगू है वो आप ज्यादा दिलजमी से सुनेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बात आखिर में करता तो मेरी पहले की बातें जो है वो हो सकता है उस तरह आप ना सुनते। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गोरा में इससे पहले मैं सिर्फ एक दफा आया और बिलाशुबा एक मॉडल और एक अच्छा अदारा बनने के जुमला लवाजमात इस अदारे के अंदर मौजूद हैं, जिसमें एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छा ग्राउंड और सबसे बढ़कर एक अच्छा स्टाफ और उससे बढ़कर एक ऑप्टिमिस्टिक पुरुम्मीद प्रिंसिपल। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो एक अदारा बनता है। फर्द वाहिद कुछ नहीं कर सकता। मैं बाहिसियत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में ये अगर कहूँ कि मैं इस जिला सदनौती के अंदर मैं तालीमी इनकलाब बाहिसियत फर्द वाहिद ला सकता हूँ तो ऐसा मुमकिन नहीं है। एक टीम वर्क होता है, लोग मिलते हैं, आपस में मिलकर अपने गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए फिर दिन रात एक करते हैं। वो तमाम जो सलाहियतें हैं वो इस अदारे के अंदर मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गोरा के मज़ाफ़ाती इलाके के लोग हैं ये इंतहाई खुश नसीब है कि उनको इतनी अच्छी टीम इस अदारे में मिली। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम उस्ताद कराम को, जो वाइस प्रिंसिपल हैं एजाज साहब, इनको, जो प्रिंसिपल है इन्हें, कि इन्होंने इतनी अच्छी टीम यहाँ पर बनाई और इतना अच्छा माहौल मुहैया किया। क्योंकि हम अमूमन एक कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। मेरा मानना यह है कि तालीम कभी प्राइवेट या सरकारी नहीं हो सकती। तालीम तालीम है। जो अदारा अच्छी तालीम देगा वहां पर लोगों का एतमाद ज्यादा होगा। जो अदारा बेहतर सहूलियात मुहैया करेगा, बेहतर नशोनुमा करेगा, उतना ही ज्यादा लोगों का एतमाद उस अदारे पर ज्यादा होगा। इससे ज्यादा किसी अदारे की परफॉर्मेंस जानने का कोई और तरीका नहीं है कि लोगों का एतमाद उस अदारे के ऊपर कितना है। आप लोगों को देख के, अवाम इलाका को देख के मैं बावसूख होकर ये बात कहता हूं कि इस अदारे पर इस अवाम का एतमाद भी है। और जो हमारा मुस्तकबिल है, ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये सिर्फ हमारे जो पब्लिक सेक्टर के अदारे हैं वही जुमला तालीमी मामलात को पूरा कर सकते हैं। जुमला तालीमी जो एक वेब है उसको ये हमारे सरकारी तालीमी अदारे ही सही तरीके से बुन सकते हैं और हमारे जो तलबा और तालिबात हमारे इन अदारों में मौजूद हैं उनकी बेहतर नशोनुमा कर सकते हैं। आज सुबह गुफ्तगू हो रही थी, तालीम सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी अदारे के अंदर किसी बच्चे को ले आए और वो बोर्ड में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पोजीशन हासिल कर ले। एक दौर था जब तालीम और जहानत मापने का एक आला था, उसको IQ कहते थे, इंटेलिजेंट कोशेंट। फिर उसके बाद कुछ जो साइकोलॉजिकल रिसर्चर थे उन्होंने कुछ वर्क किया, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी ठीक है, IQ लेवल बच्चे का ज्यादा होना चाहिए। IQ लेवल में बुनियादी तौर पे ये चीज आती है कि कोई बच्चा साइंस या मैथ्स के सवालात कितनी जल्दी हल कर सकता है। कोई बच्चा, कोई उसके सामने कॉम्प्रिहेंशन रखी जाए तो वो कितनी जल्दी उस चीज को समझ सकता है। तो साइंसदानों ने, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक और चीज बड़ी जरूरी है, वो है EQ। EQ मीन इमोशनल कोशेंट, कि आपका बच्चा कितना सच्चा है, आपका बच्चा कितना ईमानदार है, आपका बच्चा कितना दयानतदार है, बड़ों की कितनी इज्जत करता है, छोटों पे कितनी शफकत करता है। फिर वक्त बदला, 80s में एक नया म्यार निकला, उसको कहते हैं SQ। SQ कहते हैं सोशल कोशेंट को, कि आपका बच्चा
एक कम्युनिटी कैसे डेवलप कर सकता है, टीम वर्क कैसे कर सकता है, खेल के मैदान में उसका रवैया कैसा है। तो तीन बड़े जो लेवल हैं किसी की इंटेलिजेंस मापने के, IQ, EQ एंड SQ। अब जो 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी स्किल, उसमें एक नया इंटेलिजेंस लेवल उन्होंने मुतारफ कराया, एक नया लेवल मुतारफ कराया कि एक जो तालीमी अदारा है उसके अंदर एक IQ की भी नशोनुमा होनी चाहिए, EQ की भी नशोनुमा होनी चाहिए, SQ भी होनी चाहिए। अब वो फोर्थ वाला जो एक लेवल है उसको नाम दिया उन्होंने AQ, अडैप्टिव इंटेलिजेंस क्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि आपका बच्चा जब परेशान होगा तो उस वक्त उसका बिहेवियर कैसा होगा, उस वक्त वो कैसे बिहेव करेगा, क्या वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के कसरत के इस्तेमाल से हमारे बच्चों के अंदर शिद्दत पसंदी बहुत ज्यादा आ रही है, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। मोबाइल के ऊपर एक जमाना था वीडियोस देखी जाती थी बड़ी तहम्मुल के साथ, अब शॉर्ट्स का जमाना है, 5-6 सेकंड के अंदर बच्चा इतना बड़ा नॉलेज ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक जज्बातियत का आंसर बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो ये चार जो हमारे लेवल हैं एक अदारे के अंदर जो मौजूद होने चाहिए, और हमारा जो बच्चा जो तालिब इल्म हमारे अदारे के अंदर मौजूद है उसके अंदर ये चारों के चारों परवान चढ़ने चाहिए। ये सिर्फ एक सरकारी अदारा ही कर सकता है, क्योंकि उस अदारे के पास जहां क्वालिफाइड टीचर होंगे वहां उसके पास एक ग्राउंड भी होगा जिसके अंदर बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलकर एक दूसरे से बात करेंगे। सोशल कौशल सीख सकता है, सोशल कौशल उसी वक्त सीख सकता है जब, जैसे अभी यहाँ पे एक मुकर्रर ने तज़किरा किया कि सलीम अकबर साहब हमारे साथ वॉलीबॉल खेलते थे, तो ये इमोशनल कौशल, सोशल कौशल उसी वक्त डेवलप होगा जब हमारा उस्ताद उस बच्चे के साथ ग्राउंड में आएगा, उस बच्चे के साथ उस बच्चे के लेवल के ऊपर जाकर बात करेगा। और ये उसी वक्त हो सकता है जब एक ग्राउंड हमारे पास मौजूद हो। तो ग्राउंड किधर है, आप जरा नजर दोहराएं। कुछ बड़े अदारे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक बैकअप है, एक बहुत बड़ा एक फंड है, उनके पास बड़ी सोच का फरमा है, उनके पास तो ग्राउंड है, लेकिन जितने हमारे बाकी अदारा जाते हैं वहां पर ये चीज मुयसर नहीं है। ये हमारे सरकारी अदारों के अंदर ही ये चीज मौजूद है। अब ये जो अडैप्टिव क्वोशंट है ये कैसे इंसान के अंदर आएगा, मैं वैसे इसका बड़ा मुखालिफ हूं, लेकिन मुकर्रर है उन्होंने कहा कि सलीम अकबर साहब ने हमें मारा भी बहुत। तो जब वो मार पड़ती है, बेशक वो इमोशनली पड़े, बेशक वो फिजिकली पड़े, तो उसके बाद का जो एक रीबॉर्न होने का एक तजर्बा है वो हमारा सरकारी अदारे का स्टूडेंट ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते। ज्यादा लाभ प्यार जो है वो आप समझते हैं कि वो उस तरीके से डेवलप चीजें नहीं होती। तो इसलिए ये जो हमारी बहस है जिसमें हम पब्लिक और प्राइवेट अदारों को अमूमन गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं, तो ये चीज ज़हन में रखें कि अपने बच्चे को आप उसी अदारे में भेजें जहां पर ये चारों चीजें हो रही हैं, जहां पर ये चारों चीजें होने का एक शायबा हो, और आपको ये पता हो कि ये चार चीजें उस अदारे के अंदर मेरे बच्चे के अंदर पैदा हो सकती हैं। वो चारों चीजें आज हमने यहाँ पर देखी। इंग्लिश में भी तकारीर हुई, उर्दू में भी तकारीर हुई, फिजिकली जो हमारा PT शो था, ये एक हम जिस दौर के हैं 90s के, उसमें PTV के ऊपर एक ड्रामा लगता था, उसका नाम था अनबयानेबल। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो PT शो हमने देखा, ये जो बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी, वो अनबयानेबल है। और इस पर मैं जो हमारे साथी इकराम है, मैं उनका इंतहाई उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक सरकारी या प्राइवेट अदारे के अंदर जहां पर भी हो, अगर ऐसे उस्ताद इकराम हो तो नतीजा उसका ऐसा ही निकलता है जो आज हमने यहां पर देखा। हमारी देसी पहाड़ी जुबान के अंदर एक बच्चे ने गुफ्तगू की, एक तालिबा ने आकर बड़े खूबसूरत अशार पेश किए। ये एक ऐसा जुज है जो हमारे अदारे हमारे घरों से खत्म होता जा रहा है। मैं इस पे जिस भी किसी ने ये आइडिया फ्लोट किया, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अपनी जुबान को प्रमोट करना और अपनी जुबान को हमारे बच्चों के अंदर इस तरीके से लेकर आना, ये इंतहाई खूबसूरत चीज है जो मुझे बहुत पसंद आई।
आपके रिजल्ट्स माशाल्लाह से शुरू से ही, जब से मैं आया तो रिजल्ट्स की जब भी बात हुई तो यही गोरा की बात हुई। और मैं शुरू में जो तज़किरा कर रहा था, जब एमटीएस की अपॉइंटमेंट्स की बात हुई तो मैंने एक फार्मूला रखा कि जिस अदारे ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है उस अदारे के अंदर जितनी पोस्टें होंगी वो उनका प्रिंसिपल अपनी या सदर मलम अपनी मर्जी के मुताबिक वो फिल करेगा। इसमें जो हमारे अदारे जिन्होंने अच्छा रिजल्ट 9th में दिया, 10th में दिया, बिलीव मी कि मैंने उन्हें अपने दफ्तर में बुलाया। ये आबिद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताज साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे पायल का स्कूल के प्रिंसिपल कासिम साहब से भी पूछा जा सकता है, छिल्लाड़ में हमारे जो प्रिंसिपल है उनसे पूछा जा सकता है, ऊपर वाले हल्के से जो हमारे सदर मालिमीन है आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमने उनको ये चॉइस दी कि आपको जो चाहिए आप दें। मुझे क्या चाहिए कि मेरे जो अदारे हैं उन अदारों का रिजल्ट भी अच्छा है, उनका आईक्यू जो क्वेश्चन है वो भी बेहतर हो, और इसके साथ साथ जो बाकी के 3 लवाजमात है वो भी पूरे होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होती है तालीम के लिहाज से वो हमारे जितने भी बकिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है और बेहतर से बेहतर की तरफ वो इंशाल्लाह जाएगा। इस हवाले से हम कुछ इकदाम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सर ने एक तज़किरा किया कि यहाँ पर पहुँचने का एक सफ़र बड़ा मुश्किल था, तो मैं ज़रा सा बिल्कुल उसका टच दे के, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, नमाज भी कई अहबाब ने नहीं पढ़ी। मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से हुई। मेरे वालिद साहब वो आर्मी के स्कूल, आर्मी के जो प्रोफेशन है उसमें हवालदार की पोस्ट तक गए, नायक, लांस नायक और इस तरह प्रमोट होते होते गए। बेसिकली बाय ट्रेड वो एक ड्राइवर की पोस्ट पे थे। तो वहां पर हमारा बिस्मा आर्मी पब्लिक स्कूल था, वहां पे हमारे इस तरह के प्रोग्रामात हुआ करते थे। फिर उसके बाद जब हम माइग्रेट होके पंजेरा में आए तो यहाँ पर एक सरकारी अदारे में कुछ अरसा मैंने तालीम हासिल की, फिर एक प्राइवेट अदारे में कुछ अरसा मैंने तालीम हासिल की, फिर एफजी कॉलेज में गए। तो ये जो शफल था हमारा एक बिग सिटी के स्कूल से यकदम एक विलेज के या टाउन के स्कूल के अंदर, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी अब्जॉर्व करना। लेकिन फिर भी जो एक चीज़ मैंने अपने इस पूरे सफ़र में सीखी वो ये थी कि अगर इंसान का विजन क्लियर हो, अगर इंसान का एक पैशन हो कि मैंने ये काम करना है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक सकती है। इस पूरी एक सिस्टम के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि जो इंसान की विल है, इंसान की ख्वाहिश है, कुछ करने की जो एक ताकत है, अगर वो इंसान के अंदर पैदा हो जाए और कोई टीचर अगर किसी स्टूडेंट के अंदर वो पैदा कर दे, तो मैं कहता हूँ कि तालीम का हक जो है वो अदा हो जाता है। 8 साल मैंने फौजी फाउंडेशन में सर्व किया, नकियाल, कोटली, डिफेंस स्टेशन के ऊपर, बड़े अदारे, रिजल्ट उनके बहुत बेहतरीन आते रहे। ये इन अदारों का तज़किरा करके मैं ये जो बात सम अप करना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा पेरेंट्स ने योमे वालिदैन हमारे वो फौजी फाउंडेशन के अदारे भी नहीं कर सके जो आज मैंने यहाँ पर देखा। वो बिस्वा आर्मी पब्लिक स्कूल भी नहीं कर सका जहां पर मैंने तालीम हासिल की। तो मैं इस पे जनाब प्रिंसिपल आपका और तमाम जो हमारी साथी की टीम है उनका, तमाम जो हमारी फीमेल टीचर्स, कम्युनिटी टीचर्स हैं उनका, वालिदैन का और बच्चों का मैं बहुत उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये चीजें करने में अपना हिस्सा इसमें डाला। आखिरी बात करके जो मैं अमूमन करता हूँ कि कामयाबी हासिल करना ये कोई बड़ा मार्का नहीं होता। कामयाबी तक पहुंचने के लिए जो कोशिश है वो मानी रखती है, और जब आप कामयाबी हासिल करके किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो वहां जाकर आप क्या करते हैं ये डिटरमिन करता है कि आपका ताल्लुक किस खानदान से है, आपका ताल्लुक किस एक सोसाइटी से है और आप कितनी अजीम सोच रखने वाले इंसान हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जिला सदनौती के अंदर ये कोशिश की है कि राउंड द क्लॉक, ये रही फानी साहब हमारे साथ जुड़े रहे हैं, बेशुमार मुकाबलों में ये हमारे जज रहते हैं, हमने ये कोशिश की है
کہ میں اور میری جو ٹیم ہے وہ مل کر ضلع سدنوتی کے اندر ایک ایسا کلچر ڈیولپ کریں کہ جس میں ہمارا ہر بچہ سٹیج کے اوپر آئے اور سٹیج کے اوپر آ کر وہ اپنا معافی ضمیر بیان کرے۔ گزشتہ 1 سال کے اندر ہمارے بچوں نے آزاد کشمیر لیول کے اوپر پوسٹر کمپٹیشن میں انعام ون کیے، ہمارے بچوں نے تقریری مقابلوں میں انعام ون کیے، ہمارے بچوں نے جو سیرت کانفرنس ہے اس میں یہاں سے ضلع سدنوتی سے اٹھ کر یہ جیلم ویلی میں جا کر پارٹیسپیٹ کیا، وہاں پر انعام وصول کیے۔ کوٹلی میں ابھی ریسنٹلی ایک ہمارا سیرت نبی کانفرنس ہوئی اسکاؤٹنگ کی، وہاں پر ہمارے بچوں نے انعام وصول کیے۔ ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب آئے تھے تو انہوں نے یقین کریں ہماری وہ اسکاؤٹنگ کے جو دستے کا ایک مارچ پاسٹ تھا اور ایک سلامی تھی، اسے دیکھ کر انہوں نے شاباش دی۔ وہ شاباش میری شاباش نہیں ہے، وہ شاباش آپ اساتذہ کی شاباش ہے، وہ شاباش آپ صدر معلمین کی شاباش ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ لوگ اتنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو ایک چھوٹا سا ایک ضلع ہے، اس ضلع کے اندر ہمارا تعلیمی معیار وہ بہتر ہو۔ UNDP کی ایک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے HDI، اس میں جو ہمارا آزاد کشمیر ہے وہ جتنے بھی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کی، اس میں سب سے اچھی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور انشاءاللہ LTS کی تقرریوں کے بعد آئندہ کوئی بھی ایلیمنٹری اسامی خالی نہیں رہے گی۔ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کی ہمیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ جو ہی کوئی اسامی خالی ہو تو ویٹنگ میرٹ میں سے جس کا حق بنتا ہے آپ اس کی تقرری کر دیں۔ اسامی جب خالی نہیں رہے گی، استاد جب پورے رہیں گے، والدین کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ ان اداروں کو مثالی ادارہ بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان اداروں کو میں عموماً ایک تذکرہ کرتا ہوں کہ یہ جو بلڈنگ ہے، جیسی یہ بلڈنگ ہے، اس میں لوگ یونیورسٹیاں چلا لیتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ جلدی ہی ڈگری کالج بنے گا اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ایک مادر علمی کا روپ یہ دھارے گا۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، تمام طلباء و طالبات جنہوں نے اسٹیج پر آ کر پرفارم کیا، آپ کو خراج تحسین، آپ کو شاباش، اسی طریقے سے پرفارم کرتے رہیں۔ تمام اساتذہ کو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی عزتوں سے نوازا۔ جناب صدر محفل، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت سے، اتنی شفقت سے آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا۔ آپ یہاں سے اس ادارے سے تو رخصت ہو رہے، لیکن ہم آپ کی جو تعلیمی خدمات ہیں ان سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب آپ کی فیئرویل ہوگی وہ ہم انتہائی شان طریقے سے وہ یہاں پر ہم منائیں گے۔ ایک شعر احمد فراز کا وہ کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، سب اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلاتے جائیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم سب ہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ والسلام۔